So this is going to be the 7th day of this challenge. Here I am going to teach you the phrases of carry. Carry, I will teach you 10 different phrases with the meaning of carry. Okay, so if we are adding some preposition with the meaning of carry, it is making another meaning each time and very usable in our day-to-day life conversation. So watch this video till then if you are interested to learn this language, if you want to speak very good English. So watch this video. Don't have to neglect watching this video. You just have to note down the phrases that I am teaching you guys. If you are just dedicated towards learning this language, if you are just thinking, you are just serious about this language, so just you will definitely note down these phrases with me. Okay, and you will definitely use these phrases in your everyday life. So without any further delay, let's get started. Guys, the phrase number 1, that is carry into. Carry into means होता है डालना. यानी कि for examples, I'm going to give you 2 examples here. Example number 1, that is she carried the water into the baggie. उसने जो मक्खन है ना उसने सब्जी में डाला. उसने मक्खन को सब्जी में डाला. जैसे हम डालते नहीं तो we can use I just have to carry the water into the baggie. So these kinds of sentences you guys can also form. If I can, so can you. Okay, is example number 2, that is he carried the box into the room. उसने box को room में डाल दिया, यानी कि ऐसे ही फेंक दिया, डाल दिया, रख दिया, ऐसे बोल सकते हैं. Okay, so guys, this was the phrase number 1 with the meaning of carry. और इसमें हमने एक preposition जोड़ा into preposition. When we are adding the preposition into with the carry, it is making a very common, very usable meaning, very usable phrase. Okay, the phrase number 2, that is carry weight. Carry weight means होता है असर होना. इसको हम यूज कर सकते हैं many ways में, बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं. So guys, example लेते हैं. Let's take 2 examples. Example number 1, that is her words carry weight in the meeting. सभा में उसके words असर डालते हैं. उसके वर्ड्स सभा में असर डालते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, योर वर्ड्स विल कैरी वेट ऑन स्टूडेंट्स. आपके शब्द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों पर असर डालेंगे. एंड गाइस, फ्रेज नंबर 3, दैट इज कैरी थ्रू. कैरी थ्रू मीन्स होता है अंजाम देना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज आई विल कैरी थ्रू माई ड्रीम दैट आई वांट टू अचीव. आई जस्ट हैव टू बिकम एन IAS ऑफिसर. आई विल डेफिनेटली कैरी थ्रू माई ड्रीम. मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मैं निश्चित तौर पर अपने एम को अंजाम दूंगा. हो गया. एग्जाम्पल नंबर 2, डिस्पाइट हैविंग मैनी डिफिकल्टीज शी कैरीड थ्रू हर एम टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. बहुत सारी डिफिकल्टीज होने के बावजूद उसने अपने एम को, जो इंग्लिश बोलने का एम था, उसने पूरा किया, अंजाम दिया. So these were 2 examples that we guys can use, and with the meaning of carry through, we can form many sentences which we can use in our everyday life, day-to-day life. Okay, guys, the phrase number 4, that is carry forward. Carry forward means होता है आगे बढ़ाना. Examples लेते हैं. Example number 1, I will carry forward the meeting till night. मैं इस मीटिंग को रात तक बढ़ा दूंगा मैं इस मीटिंग को. ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, आई विल कैरी फॉरवर्ड द वर्क दैट वी स्टार्टेड लास्ट नाइट. इस कार्य को आगे बढ़ा दूंगा जो हमने स्टार्ट किया था. तो दीज वर 2 एग्जाम्पल्स, वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन हियर. यू गाइज कैन ऑल्सो फॉर्म दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज दैट यू गाइज कैन यूज इन योर एवरीडे लाइफ. is the phrase number 5, that is carry along means होता है साथ ले जाना. For example, when we say कि मैं अपने साथ बैग ले जाऊँ, अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाऊंगा, मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मैं अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाऊंगा. I will carry all the necessary documents along with me because I just have to take a very important paper or exam.
मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहा हूँ और मैं अपने साथ सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाऊंगा. दिस वाज द एग्जाम्पल नंबर 1. एंड एग्जाम्पल नंबर 2, we will carry the bag, the tourist bag along with us because we are going to visit a very interesting, very beautiful city which is very far from us. मैं अपने साथ हमें अपने साथ एक टूरिस्ट बैग को ले जाना चाहिए क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छे, सुंदर और बहुत ही दूर प्लेस में जा रहे हैं. ओके गाइस, द फ्रेज नंबर 6 दैट इज कैरी अवे. कैरी अवे मीन्स होता है कंट्रोल से बाहर होना. जैसे हम बोलते ना कि उसके आंसू कंट्रोल से बाहर हो गए थे. सी कैरीड अवे हर टीयर्स. सी कैरीड अवे हर टीयर्स. उसके आंसू कंट्रोल से बाहर हो गए. एग्जाम्पल नंबर 2 दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ द रिजल्ट कैरीड अवे हिम. जो रिजल्ट आने का एक्साइटमेंट था ना, उसको कंट्रोल से बाहर कर दिया. रिजल्ट आने के एक्साइटमेंट ने उसे कंट्रोल से बाहर कर दिया. एंड गाइस, द फ्रेज नंबर 7 दैट इज कैरी ऑन. कैरी ऑन मीन्स होता है जारी रखना. दिस इज वेरी कॉमन. वी ऑलवेज यूज दिस फ्रेज. देयर इज नो दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस टू यूज इन अवर डेली लाइफ. We are going to take 2 examples here. Example number 1 that is carry on. Carry on your journey. You will definitely get success one day. अपनी जो जर्नी को कैरी ऑन करो, करते रहो, आप जरूर एक ना एक दिन सक्सेस पाएंगे. ओके. एग्जाम्पल नंबर 2, आई विल कैरी ऑन अपलोडिंग माई वीडियोज ऑन यूट्यूब. कम वॉट में मैं अपने वीडियोस को यूट्यूब में अपलोड करता रहूंगा, चाहे जो हो जाए. एंड गाइज द फ्रेज नंबर 8 दैट इज कैरी आउट. कैरी आउट मीन्स होता है पता लगाना. एग्जाम्पल्स लेते हैं, वेरी कॉमन. एग्जाम्पल नंबर 1, आई विल कैरी आउट द ट्रूथ. मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा. ओके. एग्जाम्पल नंबर 2 दैट इज द पुलिस इज कैरिंग आउट द एविडेंसेस. जो एविडेंसेस होते हैं ना, उनका पता लगा रही है पुलिस. एंड गाइज द फ्रेज नंबर 9 दैट इज कैरी ओवर. कैरी ओवर मीन्स आगे काम आना. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, योर एक्सपीरियंस विल कैरी ओवर. योर एक्सपीरियंस विल कैरी ओवर इन द फ्यूचर. जो आपका एक्सपीरियंस है ना, अनुभव, वो फ्यूचर में काम आएगा. एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं. योर एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम दिस मंथ विल कैरी ओवर द नेक्स्ट मंथ. जो आपकी जो एक्स्ट्रा मनी है ना, जो बची हुई मनी है इस मंथ में, वो आपके अगले मंथ में काम आएगी. हो गया. इज फाइनल वन दैट इज कैरी ऑफ. कैरी ऑफ मीन्स होता है बीमारी से मर जाना. जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, द कोरोना वायरस कैरीड ऑफ lots of people. मतलब कोरोना वायरस ने बहुत सारे लोगों को मार दिया. बहुत सारे लोगों को मार दिया. एग्जाम्पल नंबर 2 दैट इज दैट डिजीज कैरीड ऑफ हिम इन जस्ट अ फ्यू डेज. मतलब कुछ ही दिनों में उस डिजीज ने, उस बीमारी ने उसे मार दिया. These were 2 common examples that I have given here. This is not a rocket science. This is very easy, guys. Guys, here I have taught you 10 different sentences. The phrases that you guys can use in your day-to-day life conversation. If you are using these phrases in your everyday life, you're going to learn this language very soon. Here I have given the 2 examples with each phrase. So, guys, if it was very helpful for you, if you found something relevant by watching this video, so you just have to like this video and comment on my video. How am I making my videos? And please do subscribe my channel and hit the bell icon so that you can never miss my videos. And I will be uploading these kinds of essential videos for you guys so that you guys can also speak very good English after sometimes. So guys, this was the video about, and please comment. Definitely you just have to comment in my video on what topic do I have to make video. I will try to make. Okay, so we'll meet in another video. Bye bye. In another specific video we will meet. So bye bye.